Whole morning we have been busy in the court. My officers have been busy in the court. I just come. We will sit together now and look at the whole situation and decide our plan of action. If you have anything to ask, you may ask, please. सर बॉलीवुड कलेक्शन क्या है? बॉलीवुड No, I am not aware of it. I will find out. मैं करूँगा. एक इधर से चलते हैं. We will go like this. Please be patient. सुशांत के अलावा बॉलीवुड क्या कलेक्शन है? देखिए इस केस से हमें देखिए नॉर्मली बहुत सारी ये जो इन्फॉर्मेशन इस समय हमारे पास है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया में जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी या दूसरी एजेंसीज के पास आएगी और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो. Follow this parent. Narcotics Control Bureau and the other agencies have been knowing for a very long time about the existence of the drug circuit in Bollywood. It's been an open Let me. Never before such an action has been taken. Okay. NCB seems to be very strict this time around. Jay sir is very supporting sir. Shall I answer your question first? Let me put it. Shall I answer your question first? My question is, will the Bollywood will be questioned or it is only the small fishes that will be Let me put it this way. Narcotics Control Bureau is the national agency, the uppermost drug law enforcement agency for drugs. Okay, we look at international connections and interstate connections. Normally, we look at international and interstate connections. We look for the big fish. Normally, this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. We will take it to its logical conclusion. Now that you have arrested the sister we called in Riya Chakrabarti. Yeah, let me clarify. Let me clarify. मैं ऐसे आ रहा हूँ. You guys got to have patience. जवाब ले ले दो. Okay. Yeah, I'm answering Riya's question. See, the whole idea of taking custody remand is to make people confront each other, to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation and maybe some other people, because we also need clarity who did what, and that is the point of custody remand. So I am telling you that we will be asking her to join the investigation. सर रिया सर हो गया सर रिया को सम्मन कब तक भेजा जाए? क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? और आज बॉलीवुड नेक्सस को लेकर के किस तरीके के सबूत सामने आए हैं ड्रग्स एंगल? जहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है. नो स्पेकुलेशन प्लीज. लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग. ऑनेस्टली वी विल टेल यू. लेकिन जाएगा जरूर. लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन. ड्रग्स एंगल को लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को लेकर के कल भी जिस तरीके से रिमांड कॉपी में कहा गया था कि कहीं न कहीं नेक्सस है और एक बड़ा रैकेट इस तरीके की चीजें, उसके क्या चीजें आई? मैंने अभी इनके सवाल के जवाब में यही कहा है कि नॉर्मली नाउ दैट वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल एंड वी होप टू विद योर कैन आई फिनिश दिस? We will this case has given us an inkling into the network, and
extent of the penetration. Let me put it this way, okay? आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है I can't handle this. सर आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है उसमें सिर्फ चैट ही थी कि क्रूशियल एविडेंस भी मिले थे और कुछ सीजर्स भी हुए हैं। That is between the court and us. I cannot share that. It is a judicial information. I cannot share with you. मैं हिंदी में दे दूंगा, बट थोड़ा रुक जाइए, हिंदी में दे दूंगा आपको। देखिए मैडम, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो कड़िया है, हम अपने पीपी को साथ में रखे, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसको बुलाएंगे। नो स्पेकुलेशन ऐसे जब जिस स्टेज पे जाएंगे। दीपेश सावंत को क्या अप्रूवर बनाया गया है? दीपेश सावंत को क्या अप्रूवर नहीं, बनाया गया है? मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको। एनसीबी जो केस दर्ज करती है ना, वो कंप्लेंट केस होता है, वो पुलिस की तरह एफआईआर नहीं होती है। कंप्लेंट केस में हमारे पास छोटे ड्रग के मामलों में 60 दिन का टाइम होता है। बड़े केसेस जो नॉर्मली हम करते हैं, हमें 6 महीने इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलता है। जब हम चार्ज फाइल करते हैं तब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस समय रेलिवेंट होगा, आज की तारीख में और इररिलेवेंट। अभी इसका कोई मेरा एक सवाल है आपका मैंने जैन सर एक सवाल है, इसमें श्रुति मोदी, जय साहा और रिया चक्रवर्ती, ये तीनों आपके रडार पे हैं और ये इनको जल्दी ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मैं इस बारे में नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, जितना मैं कंफर्म कर सकता आज की रिया के बारे में बता दीजिए। मैंने आपका क्या सवाल है पूछिए। हाँ, हिंदी में आप 4 नाम लोगे, मैं रिया के बारे में हिंदी में बता दीजिए। अरे एक मिनट, रनौत ने जो डिटेल साझा अरे एक मिनट, उसको लेकर के आप जांच करेंगे क्या? अरे रिया के बारे में कंगना रनौत का इस इन्वेस्टिगेशन से अभी तक कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अगर वो कोई चीज शेयर करती है तो हम देखेंगे क्या उसका रेलेवेंस है क्या नहीं। सर मेरा सवाल बता दीजिए। सर मेरा सवाल है रिया के बारे में आप थोड़ी अपडेट हिंदी में दे दीजिए ताकि लोग समझ सकें। आपका सवाल पूछिए ना, आप अपडेट। मेरा सवाल यही है कि रिया के बारे में आगे किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है। देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट हैं उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया शामिल है। अभी तक 24 के खिलाफ है, वही रिया के भी खिलाफ है। उस चेन में 15 मार्च के चैट में रिया सबसे ऊपर है, जो 24 से मंगा रही है सिगरेट। क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे सबूत डिस्कस नहीं कर सकता। सर अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में, और कितने लोगों उसके लिए मुझे गिनती करनी पड़ेगी इस समय, इस माहौल में मुश्किल है। तो ये एनसीबी दफ्तर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, और जिस तरीके से अधिकारी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल अभी शौविक और सैमुअल मिरांडा जो हैं उन्हें कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, और बहुत बड़ी मछली अभी फंस सकती है, यानी बहुत बड़ी मछली तक पहुंचने की कोशिश। वो कौन बहुत बड़ी मछली है, इस पर दरअसल अब देखना होगा। कई पत्ते अभी फिलहाल जांच क्योंकि चल रही है, इसलिए एनसीबी खुलकर नहीं बता सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं कि रिया को भी समन आगे भेजा जा सकता है, क्योंकि कई चैट्स में रिया का नाम भी सबसे ऊपर और कई बार दर्ज है। हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, यानी बड़ी मछली की तलाश में है एनसीबी। देखिए, बिना नाम लिए सबसे बड़ी खबर दे दी है एनसीबी के अधिकारी ने। उन्होंने कहा है कि इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उन सबको सम्मन भेजा जाएगा और सबसे पूछताछ होगी, यानी रिया की पूछताछ होना एनसीबी ने कंफर्म कर दिया है। उनको सम्मन जाएगा, ये भी कंफर्म कर दिया है। और सबसे बड़ी मछली, यानी जो सुबह से मैं लगातार कह रहा था, न्यूज 18 इंडिया लगातार कह रहा था कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं सोर्स खोजने की कोशिश की जाएगी कि ये ड्रग्स का सोर्स कहां से है, कहां से मेन ड्रग्स आता है और कहां जाता है। उस पर भी आज मुहर लगा दिया। एनसीबी के अधिकारी ने कहा है कि वो भी खोजा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिन जिन लोगों की रिमांड ली गई है उन सभी को आमने सामने बिठा करके
एक रोड मैप देखा जाएगा, यानी कहां कहां से ट्रैक चला और किस किस तरीके से आया, वो सारे रोड मैप तैयार किए जाएंगे और सभी को आमने सामने सारे आरोपियों को बिठाएगी एनसीबी। ये बड़ी खबर है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा भले ही हम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की डिटेल शेयर ना करें, लेकिन सभी को कन्फ्रंट कराया जाएगा, यानी सारे आरोपी जो अब तक हैं, सौभिक चक्रवर्ती हो या फिर सैमुअल मिरांडा हो या इसके पहले जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन सारे गिरफ्तार आरोपियों को आमने सामने बिठा करके रोड मैप एनसीबी तैयार करेगी। यानी साफ है कि 3 महत्वपूर्ण चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आई है। पहली खबर ये कि रिया का नाम लिए बिना ये कह दिया गया है कि उनको सम्मन भेजा जाएगा और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, सोर्स खोजने की पूरी कोशिश होगी कि ये ड्रग्स कहां से आता था, बॉलीवुड में कहा जाता था और कौन कौन से लोग इस पे शामिल होते थे, यानी सोर्स और उसका रोड मैप। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, सारे आरोपियों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। यानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं कि आने वाले समय में रिया को सम्मन करके बुलाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी मछली है वो सारी मछलियों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि उनके पास 60 दिन का समय है और 60 दिन में वो पूरे इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। दीपेश सावंत को लेकर उन्होंने कहा है कि दीपेश सावंत जब अप्रूवल बनाने की बात आएगी तो हम दीपेश सावंत के बारे में विचार करेंगे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कह दिया है कि दीपेश सावंत अप्रूवल बन सकते हैं और उसके लिए एनसीबी ने तैयारी कर दी है। आने वाले 4 दिनों में बिल्कुल, यानी अभिषेक महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। जो खास बातें निकलकर सामने आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ये है कि रिया को जल्द ही समन भेजा जा सकता है और साथ ही साथ ये जो 4 लोग जिनकी रिमांड मिली है 4 दिन की, इनसे फिलहाल पूछताछ होगी। कई अहम सबूत एनसीबी को हासिल हो गए हैं और कई सबूत जोड़ने की कोशिश अब आगे एनसीबी की होगी।